One thing I want to tell you कि yesterday I have gone with what yesterday I had gone with Milton's Paradise Lost, and I told you why Milton's Paradise Lost is significant, why is it important, what you have to prepare, and what type of question will be asked. And even I also suggested that during pandemic, it's not possible to present in class physically. It's a virtual class, it's a online class, and you all have to show your presence in this class because there are so many things which I will discuss with you, and it will be highly helpful from the perspective of examination. Though I have completed my syllabus, even paper first and paper second also, but it's a time to get your company. It's a time to interact with you. It's a time to motivate you to motivate you. It's time to encourage you. And when you show your presence, not only uh, it shows your presence, but seeing your presence, your teacher, he is also going to be motivated. He is also encouraged. He also takes interest that he has to take class because his students are regularly attending class. Yeah, they are showing their presence. And regarding pandemic, I would like to suggest that stay at home, use mask, use sanitizer, and necessary, whenever it's necessary, then you have to leave your home. Then you have to go to market or outside of your home. And what the norms, what the guidelines have been given by our government, we all have to follow that thing. It's not only for the betterment of ourselves, for the betterment of the society, for the betterment of the community. As far as matter is concerned कि what will I teach you today, मैं आपको आज क्या पढ़ाऊंगा, या what I have in my literary basket. Just I want to tell you कि first I would like to revise the class which I have taken yesterday. Class which I had taken yesterday, I would like to revise. Second important point, I will tell you something, some new points also. Uh, then I just want to know कि yesterday I had gone with Milton's Paradise Lost. I want to know when was Milton born. मिल्टन कब पैदा हुए थे. When Milton was born. I told you that Milton was born in 1604. वो 1608 ईस्वी में पैदा हुए थे. मिल्टन डाइड इन 1674. 1674 ईस्वी में उनकी मौत हो जाती है. आई ऑल्सो टोल्ड यू कि द एज, जिस एज से द मैन मीन्स दैट द मैन ऑफ लेटर मीन्स जॉन मिल्टन और दैट ग्रेट पोएट बिलोंग, दैट एज वॉज प्यूरिटन एज. उस एज को हम प्यूरिटन एज के नाम से जानते हैं. एंड इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1625 टू 1660. जो जॉन मिल्टन का जो पीरियड है वो 1625 से 1660 ईस्वी तक का पीरियड कवर करता है. अगर ये 1625 से 1660 ईस्वी तक का पीरियड कवर करता है, तो जो 1625 से 1660 तक का पीरियड है, इसको हम किसके नाम से जानते हैं? प्यूरिटन एज के नाम से जानते हैं. इट इज नोन एज प्यूरिटन एज. It is known as Puritan age because it was the age of what? It was the age in which we find reformation in the field of religion. बहुत सारा अ, समाज सुधार के साथ साथ धार्मिक सुधार भी हुआ. और रिलीजन को लेकर के कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, जो ये आइडियोलॉजी क्रिश्चियन का जो ये दो ब्रांचेस है रिलीजन, उनका जो रिलीजन जो दो हिस्सों में बटा हुआ था, उसको लेके बहुत सारा बात होती है. मिल्टन वॉज द leading poet of this age, and Milton also took the religious subject matter, especially when he wrote two great epics, Paradise Lost and Paradise Regained, and also one poem, Ode on the Morning of Christ Nativity. तो जो जॉन मिल्टन है वो जिस एज से बिलोंग करते हैं,
वह एज प्यूरिटन एज था। प्यूरिटन एज की जो डेट है वो 1660 ईस्वी, नॉट 1660, 1625 से 1660। और इस प्यूरिटन एज को दो छोटे हिस्सों में बांटा जाता है। दैट प्यूरिटन एज इज डिवाइडेड इनटू टू स्मॉल पीरियड। द फर्स्ट पीरियड वाज व्हाट द फर्स्ट पीरियड वाज, you will come to know, that was the Caroline age. Caroline age, it covers the period from 1625 to 1640। जो आपका कैरोलिन एज है वह 1625 से 1649 तक का पीरियड कवर करता है। आफ्टर कैरोलिन एज you get what? After Caroline age you get Commonwealth period, and this Commonwealth period it covers the period from 1649 to 1660। और कल भी मैंने बताया था कि इस एज में बहुत सारा पॉलिटिकल हमड्रम हुआ था, बहुत सारा पॉलिटिकल उतार चढ़ाव हुआ, जिसमें एक सबसे बड़ा चीज ये होता है कि 1642 में सिविल वार शुरू होता है बिटवीन किंग एंड पार्लियामेंट। इफ द क्वेश्चन कम्स कि व्हेन सिविल वार वाज स्टार्टेड, सिविल वार वाज स्टार्टेड इन 1642 बिटवीन किंग एंड पार्लियामेंट। उसके अलावा यह कोर्ट एंड पार्लियामेंट आप कह सकते हैं, या सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी। सेकेंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो ये बताया था कि 1643 ईस्वी में प्रेस वाज सेंसरशिप। प्रेस का मतलब लोगों के बोलने की आजादी, लोगों के लिखने की आजादी पर बैन लगा दिया गया था। इस चीज को क्या कहा गया? प्रेस वाज सेंसरशिप। प्रेस पे कैंची चलाई गई कि आपको क्या बोलना है, क्या लिखना है। इट वाज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। और प्रेस को जब बैन लगाया गया तो मिल्टन ने इस बैन के खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट चलाया। उन्होंने एक प्रोज वर्क लिखा जिसका नाम था एरियोपैजिटिका। मिल्टन रोट अ बुक, the name of that book was Areopagitica, and Areopagitica it came in 1644। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और ये पूछा जा सकता है कि एरियोपैजिटिका किसने लिखा? एरियोपैजिटिका जॉन मिल्टन ने लिखा। जॉन मिल्टन ने जो एरियोपैजिटिका लिखा हुआ है वह एक प्रोज वर्क है। और यह इसमें किसको लेके बात की गई है? फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर के बात की गई। यह जो फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर के एरियोपैजिटिका में जो बात की गई है ये कब होता है? ये 1644 ईस्वी में। यू विल कम टू नो कि इट केम इन 1644 या 1644 ईस्वी में आता है। और यह प्रोज वर्क है इनका। इसमें उन्होंने प्रेस की फ्रीडम को लेकर के बात किया। 1642 में एक और घटना घटित हुई थी। 1642 ईस्वी में थिएटर वाज बैन। थिएटर का मतलब वो ड्रामा से जुड़ा हुआ है। थिएटर को बैन कर दिया गया था। और जब थिएटर को बैन 1642 ईस्वी में किया गया तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले जो मनोरंजन का साधन था वो केवल थिएटर था। ड्रामा देखने के लिए बहुत सारे थिएटर, शेक्सपियर के जमाने में यू फाइंड ग्लोब थिएटर, बारबेजेस कंपनी ऑफ थिएटर, देयर वर सो मेनी थिएटर। तो होता क्या था कि प्ले को परफॉर्म किया जाता था, और प्ले को परफॉर्म करने के लिए एक बड़ा सा थिएटर बनाया जाता था। वहां पे सारे लोग इकट्ठा होते थे, वे अपने ढंग से चीजों को देखते थे। तो कहीं ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो जाए और वह भीड़ राजा के खिलाफ ना हो जाए, इसके लिए क्या किया गया था? थिएटर वाज बैन। और थिएटर को बैन करने की घटना कब होती है? 1642 ईस्वी में। सिविल वार कब शुरू होता है? 1642 ईस्वी में। प्रेस को सेंसरशिप कब किया जाता है? 1643 ईस्वी में। प्रेस की के बैन के खिलाफ या प्रेस के सेंसरशिप के खिलाफ मिल्टन ने कौन सा प्रोज वर्क लिखा था? एरियोपैजिटिका। वह कब आता है? 1644 ईस्वी में। मिल्टन कब पैदा हुए थे? 1608 ईस्वी में। मिल्टन कब मरते हैं? 1674 ईस्वी में। मिल्टन किस एज से बिलोंग करते हैं? प्यूरिटन एज से बिलोंग करते हैं। मिल्टन जिस एज से बिलोंग करते हैं जिसका नाम प्यूरिटन एज है, वह कब से कब तक का पीरियड कवर करता है? 1625 से 1660 ईस्वी तक। एंड दिस प्यूरिटन एज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। इस प्यूरिटन एज को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हिस्से को हम क्या कहते हैं? एक हिस्से को कैरोलिन पीरियड, जिसमें राजा चार्ल्स फर्स्ट थे। और यह पीरियड कब से कब तक है? 1625 से 1649 ईस्वी तक है। दूसरा पीरियड आपका क्या था? सेकेंड पीरियड जो था, सेकेंड पीरियड वाज व्हाट? द सेकेंड पीरियड वाज आपका कॉमनवेल्थ पीरियड। वो 1649 से 1660 ईस्वी तक रहा। तो प्यूरिटन एज को, व्हेन यू टॉक अबाउट प्यूरिटन एज, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि दो हिस्सों में बांटा जाएगा। 1625 से 1649, 1649 से 1660। 1625 से 1649 ईस्वी तक का जो टाइम है उसमें कौन रहे? चार्ल्स फर्स्ट रहे। 1649 से 1660 ईस्वी तक का जो टाइम होता है
उसमें यू विल कम टू नो कि उसमें दो लोग आते हैं। एक आदमी का नाम ओलिवर क्रॉमवेल है जो 1649 से 1658 तक, उसके बाद रिचर्ड क्रॉमवेल आते हैं जो 1658 से 1660 ईस्वी तक आते हैं। एक्सेप्ट इट यू फाइंड व्हाट, एक्सेप्ट इट यू फाइंड अनदर पर्सन, की एक और घटना घटित हुई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि 1649 ईस्वी में चार्ल्स फर्स्ट की हत्या कर दी जाती है। और उनके जो भाई थे चार्ल्स सेकंड, वो कहाँ पे चले जाते हैं, वो फ्रांस को भाग जाते हैं और फ्रांस से उनकी वापसी 1660 ईस्वी में होती है, जिसकी वजह से उस एज को रेस्टोरेशन एज के नाम से जाना जाता है। तो ये जो एज रहा या पॉलिटिकल हमडम का एज था, या एक तरह से सिविल वॉर का एज था, सिविल वॉर बिटवीन ऑटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी, बिटवीन कोर्ट एंड पार्लियामेंट, या बिटवीन द सपोर्टर ऑफ द किंग एंड द सपोर्टर ऑफ द पार्लियामेंट, उनके बीच का यह जो है वॉर था। सो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस वॉर या व्हेन यू टॉक अबाउट जॉन मिल्टन, तो उसमें जॉन मिल्टन का क्या कंट्रीब्यूशन। अब सवाल उठता है कि एज अ पोएट जॉन मिल्टन ने क्या किया। जॉन मिल्टन ने एक तो दो ग्रेट एपिक लिखा है, पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेन। और ये दोनों जो एग्जांपल है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, दैट इज द एग्जांपल ऑफ लिटरेरी एपिक, और उसको हम सेकेंडरी एपिक भी कहते हैं। यस्टरडे आई टोल्ड यू कि जो लिटरेरी एपिक है या जो सेकेंडरी एपिक है, ये लिटरेरी एपिक और सेकेंडरी एपिक, यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड द इंडिविजुअल क्राफ्टमैनशिप in literary epic or secondary epic. You also find what, you also find the individual talent of the poet, how the poet invent character, how the poet write epic, all the things, characters, events, situations, circumstances, these things have been created by him, these things have been created by the poet। वह किसी की कॉपी नहीं करता। और कल भी मैंने आपको बताया था कि एपिक जो है वो लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्स है। एपिक जो होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री होती है। एपिक में एक ग्रांड स्टाइल होता है, एलिवेटेड थॉट होता है। सबसे बड़ा चीज होता है कि उसका सब्जेक्ट मैटर, बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट मैटर चूज किया जाता है, और सीरियस सब्जेक्ट मैटर के साथ उसका प्रेजेंटेशन भी सीरियस होता है। अब आप ये कह सकते हैं कि कैसा सीरियस सब्जेक्ट मैटर होगा। वह ऐसा सीरियस सब्जेक्ट मैटर होता है जो किसी नेशन के फेट से बिलोंग करेगा, किसी ट्राइब के फेट से बिलोंग करेगा, या पूरा ह्यूमन रेस से बिलोंग करता है। जैसे अगर आप बात करेंगे पैराडाइज लास्ट जो जॉन मिल्टन ने लिखा है, तो पैराडाइज लास्ट द मींस एपिक विच हैज बीन रिटन बाय जॉन मिल्टन, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है, इसका सब्जेक्ट मैटर इंडिविजुअल क्राफ्टमैनशिप ना, सॉरी, दैट इज व्हाट की फॉलिंग ऑफ एडम एंड ईव, एंड इट्स एसोसिएटेड विद whom, इट्स एसोसिएटेड विद ह्यूमन बीइंग रेस। एडम और ईव का जन्नत से या स्वर्ग से फॉलिंग होना या कोई मामूली घटना नहीं है, या केवल ऐसा नहीं कि हमारे अर्लीस्ट फादर्स वहां से निकाल दिए गए, बट यू विल कम टू नो कि इट्स एन इवेंट जो आज भी उसके बारे में जिक्र है और जिसके बारे में तमाम हॉली बुक्स में उसका जिक्र किया गया। तो यह जो इवेंट हुआ था यह ह्यूमन रेस से बिलोंग करता है। सो ऐसे सब्जेक्ट मैटर लेकर के लिखे जाते हैं। ऐसे ही तमाम तरह की, होमर ने इलियड एंड ओडिसी लिखा, सोहराब एंड रुस्तम किसका रहा है, मैथ्यू आर्नोल्ड का रहा है, वर्ड्सवर्थ का द प्रिल्यूड रहा है, और सो मेनी एपिक यू विल कम टू नो, एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन रहा है। और एक क्रिटिक आते हैं बर्टॉल्ट ब्रेcht, जिन्होंने एपिक थिएटर का कॉन्सेप्ट दिया था। ट्रेडिशनली आप देखेंगे एपिक को दो हिस्सों में बांटा जाता है, प्राइमरी एपिक या ट्रेडिशनल एपिक, दूसरा लिटरेरी एपिक या सेकेंडरी एपिक। जो प्राइमरी एपिक या ट्रेडिशनल एपिक है, इसकी खासियत ये होती है कि प्राइमरी एपिक या ट्रेडिशनल एपिक, इसमें स्टोरीज, इवेंट्स, कैरेक्टर्स दे एग्जिस्ट ऑलरेडी, और दे आर इन ओरल फॉर्म, द पीपल लर्न इट बाई हार्ट, लोग इसको जबानी रट लेते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि जब लोग इसको जबानी रटते हैं तो कोई बाद में राइटर आता है जो इसको रिटेन शेप देता है। लेकिन जो सेकेंडरी एपिक है, जो लिटरेरी एपिक है, जो जॉन मिल्टन का एपिक है, या जो वर्जिल का एनीड है, या जो द प्रिल्यूड है, सोहराब एंड रुस्तम, इस तरह के जो लिटरेरी एपिक रहे हैं, उसमें यू फाइंड द इंडिविजुअल क्राफ्टमैनशिप ऑफ द पोएट, या पोएट का इन्वेंशन होता है, कैरेक्टर्स आर इन्वेंटेड, इवेंट्स आर have been created, and the you can say the basic talent or the basic characteristics of the writing of the poetry of the poet you find, उसको हम लोग देखते हैं।
अब सवाल ये उठता है कि जॉन मिल्टन में आपको क्या क्या चीजें याद करना चाहिए। कब पैदा हुए 1608 ईस्वी में, कब मरे 1674 ईस्वी में, उनको क्यों याद किया जाता है, उनको एपिक पोएट के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने कौन कौन सा एपिक लिखा, पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रिगेन। पैराडाइज लास्ट कब आती है, 1667 ईस्वी में। पैराडाइज रिगेन कब आता है, 1671 ईस्वी में। पैराडाइज लास्ट कितनी किताबों में है, 12 किताबों में है। पैराडाइज रिगेन कितनी किताबों में है, 4 किताबों में है। पैराडाइज लास्ट का थीम क्या है, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। और ये किस में लिखा गया, ब्लैक वर्ड्स में लिखा गया है। और आपके यहाँ 1 से लेकर 26 लाइन तक का जिक्र किया गया है, मतलब उसमें उसी तक की बात की गई। ये कई हजार लाइनों में है, क्योंकि 12 किताबों में डिवाइड की गई, कई हजार लाइनों में। बट यू फाइंड दैट कि ओनली फ्रॉम लाइन 1 to 26 आपके यहाँ सिलेबस में रखा गया। वह जो 1 से लेकर 26 है उसको वर्ड्स पैराग्राफ कहा जाता है। वर्ड्स पैराग्राफ क्या होता है, जब ब्लैंक वर्ड्स को की कुछ लाइनें, वह पोयम जो ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है, इफ दैट इफ द सम लाइन्स ऑफ दैट पोयम इज डिवाइडेड इनटू अ स्टैंजा, तो उसको वर्ड्स पैराग्राफ कहा जाता है। और यह किस में पाया जाता है, ब्लैंक वर्ड्स में ही पाया जाता है, ना कि हीरोइक कपलेट में, ना फ्री वर्ड्स में। तो अगर कोई पूछता है कि वर्ड्स पैराग्राफ क्या है, वर्ड्स पैराग्राफ इज द डिवीजन ऑफ ब्लैंक वर्ड्स लाइन्स, ब्लैंक वर्ड्स लाइन्स का डिवीजन है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किस में लिखा गया, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया। ब्लैंक वर्ड्स का मतलब अनराइम्ड फॉर्म ऑफ वर्ड्स, आयम्बिक पेंटामीटर, 5 फीट और 10 सिलेबल। इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया है, हेनरी हार्ड लाप्सरे ने अपनी किताब जब उन्होंने वर्जिल की किताब एनीट का ट्रांसलेशन किया था, कब, 1540 ईस्वी, बुक सेकेंड एंड बुक फोर्थ। इसके अलावा आप देखेंगे कि जॉन मिल्टन ने और क्या क्या लिखा था। जॉन मिल्टन ने एरियोपैजिटी का प्रोस वर्क लिखा जो 1644 में आई है। उनका एक सोनेट आपने पढ़ा है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, आपने पढ़ा हुआ है। और वह सोनेट आपका पेट्राचन मॉडल ऑफ सोनेट है। पेट्राचन मॉडल ऑफ सोनेट को ऑक्टेव और सेस्टेट में बांटा जाता है। ऑक्टेव कंटेन्स 8 लाइन स्टैंजा, सेस्टेट कंटेन्स 6 लाइन स्टैंजा। और जो पेट्राचन मॉडल ऑफ सोनेट रहा है उसका जो एक तरह से अगर मैं कहूँ कि राइम पैटर्न जो था वो क्या था, उसका राइम पैटर्न ए बी, not A B A B, A B B A, A B B A, C D E, C D, sometimes C D C, sometimes C D C. You find that thing. So, what I want to say, what I want to tell you, even though I have gone, yesterday I have gone, I have told these points, again I revised it. और हमें और भी चीजें ध्यान में रखना चाहिए, जॉन मिल्टन ने और क्या क्या लिखा था। जॉन मिल्टन, एक तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में उनका एजुकेशन हुआ था। इसके अलावा जॉन मिल्टन को लेडी ऑफ क्रिस्ट कहा जाता है। जॉन मिल्टन को बी लेटेड एलिजाबेथन पोएट कहा जाता है। व्हाई डिड ही कॉल बी लेटेड एलिजाबेथन पोएट, ही इज कॉल्ड बी लेटेड एलिजाबेथन पोएट, क्योंकि जो बी लेटेड एलिजाबेथन जो पोएट थे, ही वाज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, वो म्यूजिक के शौकीन थे। और म्यूजिक जो है, यह किसकी खासियत है, म्यूजिक यह आपका, यू विल कम टू नो, एलिजाबेथन एज में बहुत ज्यादा लिटरेचर में यूज किया गया था। इसीलिए उनको बी लेटेड एलिजाबेथन पोएट कहा गया। ही इज आल्सो नोन एज इवनिंग स्टार ऑफ रिनेशा। Why is he called evening star of Renesha? Because the characteristics of Renesha we find in that poet. उसके बाद लगता है कि जो रिनेशा की खासियत थी वो बाद में नहीं देखने को मिलती। तो ही वॉज द लास्ट पोएट who followed the basic characteristics of Renesha as humanism, individualism, and cult of beauty, navigation, so many things। and Renesha discoveries का जिक्र भी ही है done in his works। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि उनको क्यों लेडी ऑफ क्रिस्ट कहा गया, क्योंकि उन्होंने जीसस क्रिस्ट को अपनी पोएम का सब्जेक्ट मैटर के रूप में लिए है। और साथ ही साथ उनका करली हेयर, वुमेनिश नेचर, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। सेकेंड थिंग की उनकी पहली पोएम कौन रही है, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। इट वाज कंपोज्ड इन 1629, जब वो 21 साल के थे। 1608 में पैदा हुए, 21 का मतलब तो 8 और जोड़ेंगे तो उसमें 1629 होगा। यह पोएम 1629 ईस्वी में पब्लिश होती है। At the age of 8, at the age of 21, he composed this poem, and that time he was doing his graduation. That time he was doing his graduation. So what I want to say, what I want to tell you कि,
what I want to say, what I want to tell you कि remember that when you go with these points, when you take these points, you come to know कि हाँ ये चीजें रहा या इन चीजों को हम पाते हैं। कि मिल्टन कैसे कैसे थे, मिल्टन ने क्या क्या किया। Except it, you will come to know कि मिल्टन has also did some has done some beautiful works। जैसे उन्होंने आप कह सकते हैं कि उनका कॉमर्स एक वर्क आता है, आर्केडिया, नॉट आर्केडिया, आर्केड्स उनका था। तो ये जो कॉमर्स और जो आर्केड्स था, यू विल कम टू नो, ये एक मास्क पीस था। मास्क एक तरह का प्ले होता है जिसमें जो है म्यूजिक का यूज किया जाता है। द कैरेक्टर्स हु परफॉर्म देयर रोल ऑन स्टेज दे पुट मास्क ऑन देयर फेसेस। तो कामस और आर्केड्स, इसके अलावा उनका दो और पोयम था, एल एलिग्रो आई एल पेंसिरोजो। एल एलिग्रो आई एल पेंसिरोजो ये लिरिक रहा है। और ये हार्टन में, हार्टन एक जगह थी जहाँ पे वो रह करके इन्होंने लिखा था, इसलिए इस पोयम को हार्टन पोयम्स भी कहा जाता है, HORTON, हार्टन पोयम। एल एलिग्रो ये राइजिंग ऑफ द सन से शुरू होता है, इसमें दिखाया गया दिन की शुरुआत के साथ ये पोयम शुरू होता है। और आईएल पेंसिरोजो ये सेटिंग ऑफ द सन के साथ शुरू होता है। ये दो चीजें इसमें दिखाई गई हैं। एक में उनका हैप्पी मूड है, एक में उनका सॉरोफुल मूड है, उसको उन्होंने दिखाया है। व्हेन यू गो विद दीज पोयम्स, व्हेन यू सी दीज थिंग, तो कुछ और भी उनके पोयम्स है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे उन्होंने एक एलिजी लिखा था, और वह जो एलिजी थी उसका नाम था लिसिडास। लिसिडास था, जो लिसिडास एलिजी थी, बहुत ही दैट्स अ नाइस एलिजी एंड एन एग्जांपल ऑफ पेस्टोरल एलिजी एंड आल्सो मोनोडी। और ये एलजी उन्होंने ही कंपोज दिस एलजी ऑन द डेथ ऑफ हिज बोजम फ्रेंड एडवर्ड किंग की मौत पर उन्होंने लिखा था। तो लिसिडास हो गया उनका अपना, आई एल पेंसिरोजो, एल एलिग्रो, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और उनका जो मास्क था जिसमें कामस और आर्केड्स को लेकर के हम लोगों ने बात किया। इसके अलावा उन्होंने कुछ पैम्फलेट भी लिखा था। उनकी तीन वाइफ्स भी थी, उनको भी लेकर के उन्होंने कुछ सारे पे जिक्र किया हुआ है, ऑन द डिसीज ऑफ हिज वाइफ, इस तरह से करके जो है एक सॉनेट है। सो मेनी थिंग्स यू कम टू नो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो ये था कि वो जो है ओलिवर क्रॉमवेल के लैटिन सेक्रेटरी भी थे। और शुरू में उन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल का सपोर्ट किया था, बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या व्हाट हैपेंड, दैट इज अनदर थिंग। ये सब चीजें हम देखते हैं। और स्पेशली हमें जो बात करना, वो पैराडाइज लास्ट को लेके बात करना, कि पैराडाइज लास्ट एक एपिक है। कौन सा एपिक है? लिटरेरी एपिक है। कब पब्लिश हुआ? 1667 ईस्वी में पब्लिश हुआ। कितनी किताबों में डिवाइड किया गया है? 12 किताबों में डिवाइड किया गया है। इसका थीम क्या है? टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, कि ईश्वर ने आदमी के प्रति कैसे न्याय किया। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें एडम और ईव जो हमारे अर्लीस्ट फोरफादर्स थे, वंस दे वर लिविंग इन हेवन, और कैसे सेटन जो है सरपेंट का रूप धारण करके उनको बहकाता है, और जो फॉरबिडन फ्रूट था उसको वो लोग खा लेते हैं। देन गॉड गॉट एंग्री एंड इट वाज टेकन एज द डिवाइन वार्निंग, या डिसोबेइंग ऑफ द डिवाइन वार्निंग ऑफ गॉड, उसके रूप में देखा जाता है। तो गॉड गॉट एंग्री और उनको धरती पर भेज दिया जाता है, और कुछ समय तक के लिए ये कहा जाता है कि द अर्थ इज प्लेस वेर यू हैव टू लिव एंड यू हैव टू पास अ ब्यूटीफुल लाइफ। ब्यूटीफुल लाइफ का मतलब यहाँ पर कि जो ईश्वर के दिशा निर्देशों के अनुसार, या खुदा का जो एक इंस्ट्रक्शन है, गाइडलाइन है, उसके अनुसार अगर आप जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं तो वो ब्यूटीफुल लाइफ है। उसके बाद आपको दोबारा स्वर्ग का रास्ता आपके लिए खोल दिया जाएगा। तो इसका जिक्र मोस्ट प्रोबेबली यू विल कम टू नो, जो भी रिलीजियस बुक्स हैं उसमें हुआ है। उसी सब्जेक्ट मैटर को उन्होंने लिया। लेकिन उन्होंने एक चीज बताया कि ईश्वर ने अपने जो है, क्रिश्चियनिटी ये विश्वास करती है कि जीसस क्रिस्ट जो है सन ऑफ गॉड है, तो उसमें उन्होंने बताया कि सन ऑफ गॉड जीसस क्रिस्ट को गॉड ने धरती पे भेजा। एंड उन्होंने लोगों को बताया कि हाउ यू कैन गेट द दैट दैट सीट अगेन, दैट इज द ब्लिसफुल सीट, या हाउ यू कैन रीस्टोर, हाउ यू कैन गेट heaven अगेन। तो इसके लिए गॉड सेंट जीसस क्रिस्ट एज अ messenger of God. He came in this world and told the instruction or guideline or the message of God. He spread the message of God among the people and told what you have to do, how you have lived, what you have to eat and what you have not to eat. Yeah, what is a good life, how you can pass a good life to get
दैट ब्यूटीफुल सीड, इस तरह की चीजें आई है। तो सन, सन ऑफ गॉड, एडम, ईव, सेटन, बिल्जबब, मॉसेस, और एक गॉडेस का जिक्र है जिसका नाम है आई थिंक की वीनस, नॉट वीनस, म्यूजिस, म्यूजिस उसका जिक्र। मिल्टन वांट टू गेट द ग्रेस ऑफ म्यूजिस एंड ही सेज कि आई एम गोइंग टू राइट सच अ थिंग व्हिच हैज नॉट बीन रिटन ईदर इन प्रोज और पोइट्री। मैं वो चीज लिखने जा रहा हूँ जो ना तो पोइट्री में किसी ने लिखा ना प्रोज में किसी ने लिखा, उसको लेकर के वहां पे बात की गई। सो ये जो पूरा सिचुएशन है कि जॉन मिल्टन का पैराडाइज लास्ट क्या है, कैसे है, जिसमें मैंने वर्ड्स पैराग्राफ को भी लेके बात किया कि वर्ड्स पैराग्राफ जो होता है या क्या होता है, ब्लैंक वर्ड्स का डिवीजन होता है। और इसमें जो है 1 से लेके 26 लाइन आपका वर्ड्स पैराग्राफ है, और इसमें बताया गया है कि मिल्टन क्या चाहते हैं, मिल्टन ने इस एपिक का सब्जेक्ट मैटर क्या है, कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, आगे वो क्या बताना चाहते हैं, उन्होंने किस चीज को लेकर के लिखा है। रिवोल्ट ऑफ सेटन का जिक्र किया गया है, और हाउ एडम एंड ईव वर थ्रू फ्रॉम heaven to earth, and why God got angry. God has not allowed them to eat the forbidden fruit, but they uh, disobeyed the divine warning of God, and this is why God got angry and threw them from heaven to earth. So this way you come to know about John Milton. जॉन मिल्टन का एक और वर्क है जिसको हम कहते हैं कि पैराडाइज रिगेन। अगर आप पैराडाइज रिगेन को लेंगे तो पैराडाइज रिगेन इट इज आल्सो an example of literary epic, and in this epic who is hero, the hero is Jesus Christ। और इसमें जो सब्जेक्ट मैटर है वो ये है कि द टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्रिस्ट बाय सेटन, सेटन ने कैसे लालच दिया जीसस क्रिस्ट को कि वो जो अच्छे रास्ते से भटक जाए, उसको सब्जेक्ट मैटर लिया गया। लेकिन जीसस क्रिस्ट, एज यू नो कि क्रिश्चियन बिलीव दैट ही वाज द सन ऑफ गॉड, तो ही हैज फर्म डिटर्मिनेशन, ही हैज रेजोल्यूशन, और उन्होंने सेटन के टेम्पटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, या उसको जो है उन्होंने एक तरह से चैलेंज किया या डिफीट किया। ये जो किताब है पैराडाइज रिगेंट 4 बुक में डिवाइड की गई है, ये भी ब्लैक वर्ड्स में लिखी गई है, एंड इट वाज द फेवरेट बुक ऑफ जॉन मिल्टन, और यह जॉन मिल्टन का फेवरेट बुक है, इट वाज द फेवरेट बुक ऑफ जॉन मिल्टन। नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू शेयर विद यू कि जब हम लोग इस चीज की बात करते हैं कि ये जॉन मिल्टन का फेवरेट बुक रहा है, जॉन मिल्टन का ये ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू टेल यू, व्हेन यू गो विद दीज थिंग्स की जॉन मिल्टन पैराडाइज लास्ट और उनका पैराडाइज रिगेन, तो इसके अलावा एक वर्क उनका और रहा, दैट इज सैमसन एगोनिस्ट। एंड अबाउट सैमसन एगोनिस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि इट वाज अ ट्रेजेडी ऑफ दैट मैन। सैमसन एगोनिस्ट एक उनका प्ले है, ट्रेजेडी है। इट केम इन 1671, ये 1671 ईस्वी में पब्लिश होता है। जब ये 1671 ईस्वी में पब्लिश हुआ, तो आपको ये जानना चाहिए कि यह जो ट्रेजेडी है किस पर आधारित है, ग्रीक ट्रेजेडी पर या शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पर? नो, इट्स बेस्ड ऑन ग्रीक ट्रेजेडी। ग्रीक ट्रेजेडी के मॉडल को उन्होंने फॉलो किया। ग्रीक ट्रेजेडी में क्या होता है? 3 यूनिटीज, टाइम, प्लेस, एक्शन, पोएटिक लैंग्वेज, रोल ऑफ कोरस, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड द सेम थिंग वी फाइंड हियर। और इसके अलावा आप ये देखेंगे कि इसके अलावा यू विल कम टू नो कुछ और भी चीजें आपको देखने को मिलेगा। वो कौन सी चीजें हैं कि जॉन मिल्टन के अपने वर्क में देर आर सम अदर थिंग्स, खास करके जो पैराडाइज रिगेंड है उनका, वो उनका फेवरेट बुक तो था। उसमें उन्होंने कैसे हीवेनली अर्थली सब्जेक्ट मैटर को लाया, और कैसे जो है बाद में ड्रामा में वो ग्रीक जो वे ऑफ राइटिंग है उसको फॉलो करते हैं। उन्होंने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को नहीं फॉलो किया, क्योंकि उस समय तक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इतनी पॉपुलर नहीं रही थी। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। सो नाउ वी हैव डन व्हाट वी हैव डन। आपका पूरा का पूरा जो जॉन मिल्टन है उनके वर्क को लेकर के हमने बात किया। इसके पहले आपको याद होगा एक पोयम मैंने डील किया था, दैट वाज जॉन मिल्टन से पहले जो वर्क मैंने डील किया था, मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री पर मैंने काफी बातें आपसे किया था कि मेटाफिजिकल पोइट्री को हाउ यू कैन अंडरस्टैंड, जॉन डन। उसके पहले अ वेलडिक्सन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, उसको लेके मैंने बात किया था, और मैंने कहा था कि यू ऑल हैव टू प्रिपेयर
योर सेल्फ, खास करके आज की पोयम, जॉन डन का वेलडिक्सन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, मेटाफिजिकल पोइट्री, उसके पहले लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, उसको लेकर के मैंने बात किया था कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, व्हाट यू हैव टू डू, आपको उन सब चीजों को लेके बात करना। सो रिमेंबर दैट व्हेन यू गो विद दीज पॉइंट्स, तो मुझे लगता है नाउ इट्स टाइम कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे सुन लूं। सबसे पहले मैं शेक्सपियर के को शुरू करता हूँ। शेक्सपियर वाज बॉर्न, कब पैदा हुए? 1564। शेक्सपियर डाइड विच ईयर? 1616। शेक्सपियर के फादर का नाम? या जॉन शेक्सपियर। शेक्सपियर वाज born in 1564, शेक्सपियर died in 1616। The name of his father was John Shakespeare. What was the name of his mother? Mary Arden Shakespeare. What was the name of his wife? Annie Hathaway. That's good. Annie Hathaway. Annie Hathaway. Just I want to know कि शेक्सपियर जहां पैदा हुए उस जगह का क्या नाम था? What was the name of that place? Stratford upon Avon. The name of the place was Stratford upon Avon. जो स्ट्रैटफर्ड है, स्ट्रैटफर्ड किसका नाम था? विलेज का नाम था। एवन, रिवर का नाम था। वारविक शायर, डिस्ट्रिक्ट का नाम था। इट वॉज द नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। शेक्सपियर वॉज बॉर्न स्ट्रैटफर्ड अपॉन एवन इन वारविक शायर। स्ट्रैटफर्ड वॉज द नेम ऑफ हिज विलेज, एवन रिवर का नाम, और वारविक शायर डिस्ट्रिक्ट का नाम। शेक्सपियर की वाइफ का नाम एनी हैथावे था। शी वॉज 8 years ओल्डर देन शेक्सपियर। शेक्सपियर के जो बच्चे थे उनका नाम हैमलेट और जूडिथ था। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि शेक्सपियर को, यही रख दो बेटा, यही रख दो। शेक्सपियर को जब आप बात करते हैं तो शेक्सपियर को लेकर के देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू हैव टू फॉलो। कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आता है कि शेक्सपियर को किस एज में आप देखते हैं, ही बिलोंग्स टू विच एज। व्हाट वाज द डेट ऑफ एलिजाबेथन एज? वो एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं, उसका डेट क्या था? 1558 से टू 1603। 1558 से लेकर 1603 ईस्वी तक वो जो है उस एज से बिलोंग करते हैं। उसका नाम एलिजाबेथन एज था। एलिजाबेथन एज में क्वीन एलिजाबेथ के नाम पे पड़ा था। कौन सी क्वीन थी? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट या क्वीन एलिजाबेथ सेकंड? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, दैट्स गुड। वो किस राजवंश से बिलोंग करती थी? क्वीन एलिजाबेथ किस राजवंश से बिलोंग करती थी? स्टुअर्ट डायनेस्टी। किस राजवंश से बिलोंग करती थी? स्टुअर्ट डायनेस्टी। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो क्वीन एलिजाबेथ रही हैं, क्वीन एलिजाबेथ स्टुअर्ट डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं। क्वीन एलिजाबेथ के समय शेक्सपियर आते हैं, लेकिन उनके अलावा कुछ और भी राइटर्स थे। क्या शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी राइटर्स के बारे में आप बता सकते हैं? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ सम कंटेम्प्रेरी राइटर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर? या बेन जॉनसन भी उनके कंटेम्प्रेरी थे, एंड सम अदर? एक तो आपके सिलेबस में है, प्रोज में है। फ्रांसिस बेकन नहीं बताया नहीं गया था कि एलिजाबेथन एज से फ्रांसिस बेकन बिलोंग करते हैं? फ्रांसिस बेकन, बेन जॉनसन, एडमंड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी, ये चारों चीजें आपको ध्यान में रखना चाहिए, उनके कंटेम्प्रेरी रहे। एडमंड स्पेंसर पोइट्री के फील्ड में थे, फ्रांसिस बेकन प्रोज के फील्ड में थे,
और बेन जॉनसन ड्रामा के फील्ड में थे, और इसके अलावा जो एक और नाम सर फिलिप सिडनी, वो क्रिटिसिज्म के फील्ड में और साथ ही साथ पोइट्री के भी फील्ड में थे। तो दीज फोर आर फाइव नेम्स यू हैव टू रिमेम्बर। शेक्सपियर को आप कैसे याद करते हैं? हाउ डू यू रिमेम्बर शेक्सपियर? वाज ही ओनली ड्रामेटिस्ट या कुछ और भी? ड्रामेटिस्ट एंड ड्रामेटिस्ट, लिरिसिस्ट, या यू हैव टू से ड्रामेटिस्ट एज वेल एज सोनेटियर। ड्रामेटिस्ट भी थे और वो सोनेटियर भी थे। अब आपके सिलेबस पर हम अगर आते हैं कि उन्होंने कितना सोनेट लिखा था? 154। ठीक है आयशा, ठीक है, पता है, आज तुम जो है पढ़े होगे या रजिस्टर रखे होगे बगल में, आई नो। 154 उन्होंने लिखा हुआ था। और इन हिज सोनेट ही एड्रेस्ड, इन हिज सोनेट 154 सोनेट्स में ही हैड एड्रेस्ड सम पर्सन। हु आर दे? डब्ल्यू एच, डॉक लेडी एंड क्यूपिड। डब्ल्यू एच विलियम हर्बर्ट, डार्क लेडी एंड क्यूपिड को उन्होंने एड्रेस किया हुआ है। आफ्टर इट यू विल कम टू नो कि इन सब के अलावा उनका जो सोनेट है उसका स्ट्रक्चर क्या था। आई एम नॉट आस्किंग राइम, बट आई एम आस्किंग द स्ट्रक्चर ऑफ हिज सोनेट। द स्ट्रक्चर ऑफ हिज सोनेट वाज व्हाट? द स्ट्रक्चर ऑफ हिज सोनेट वाज, उसमें थ्री क्वार्टेंस और एक कपलेट रहा। क्वार्टेंट मीन्स, क्वार्टेंट मीन्स फोर लाइन्स स्टैंडर्ड एंड कपलेट मीन्स आफ्टर गिविंग आंसर म्यूट योरसेल्फ। Quatrain means three lines stanza, couplet means two lines stanza, and in Shakespeare's sonnet, how many quatrains there are? There are three quatrains and a couplet. And the rhyme scheme was A B A B C D C D E F E F G G। ये उनका rhyme scheme रहा है। एंड यू विल कम टू नो कि उनके सॉनेट जो डार्क लेडी को लेकर के हैं, जो डब्ल्यू एच को लेकर के हैं, मैंने आपको बताया था सॉनेट नंबर 1 से लेकर 126 तक किसको बताया गया है? एक 127 से लेकर के 152 तक, 153 और 154 में क्यूपिड को, 153 154 क्यूपिड को लेके बात की गई। तो यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड कि 154 सोनेट है, लेकिन सोनेट नंबर 1 से लेकर 126 तक डार्क लेडी, 127 से 152 डब्ल्यू एच विलियम हर्बर्ट, और जो 153 54 है उसमें क्यूपिड को लेके है। क्यूपिड कौन थे? गॉड ऑफ लव। क्यूपिड के अलावा जो है एक और चीज है कि शेक्सपियर का सोनेट कब पब्लिश हुआ था? नॉट फर्स्ट सोनेट, पूरा होल सोनेट, उनका पूरा कलेक्शन 154 कब आया? पब्लिशर कौन था? आई हैव टोल्ड इट मेनी टाइम्स, एक बार नहीं कई बार मैंने बताया। यह सोनेट उनका 1609 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। इट पब्लिश इन 1609, और पब्लिशर का नाम टॉमस थारपे रहा है। इट पब्लिश इन 1609 एंड हु वाज द पब्लिशर? द पब्लिशर वाज टॉमस थारपे। डू यू रिमेम्बर? या टॉमस थारपे, THORP। आफ्टर इट यू हैव टू गो विद व्हाट? आफ्टर इट यू हैव टू गो विद शेक्सपियर का जो सोनेट आपके यहाँ है, जिसका नाम लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स है। इस पार्टिकुलर सोनेट का सीक्वेंस आप देखिएगा, परहैप्स जो भी ये नंबर होगा 117 या 16, ऐसा ही होना चाहिए इसका नंबर।
116 है। 116 जो ये सोनेट है, 116 में ही टेल्स अबाउट व्हाट, ही टेल्स अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू लव। एंड इन द आई ऑफ विलियम शेक्सपियर, या इन द व्यू ऑफ विलियम शेक्सपियर, ट्रू लव इज डिवाइन, गॉड गिफ्टेड, immortal, forever, everlasting, perpetual, and it does not decay or decline with the passage of time. It does not yield, it does not change uh, with the passage of time. Yeah, when the situation of changes come, it does not change its color, odor, and fragrance. It's the characteristics of true love. He says that love is not love which alters when it alteration finds. Even he has used the word, it is an ever fixed mark. Ever fixed mark is permanent. And he has also used the word polar star, yeah, all these things as the polar star, as it guides, जो pole star है, as it guides to whom, as it guides the winding bark. Because in the age of, are you asking something? In the age of William Shakespeare, you will come to know कि if you have to go from one place to another place, especially if you want to go any another country, there was only one way to go, and that was what? That was only the voyage, samudri yatra. So oftenly you will come to know कि people go on voyage और वे क्या करते थे? They lost their way when the sea storm come. So that time they see the direction and they come to know the direction seeing what, seeing the pole star, that was what, ध्रुव तारा, उसको देख करके, और ये नॉर्थ साइड में निकलता था। तो उन्होंने कहा कि जैसे पोल स्टार, जैसे ध्रुव तारा क्या करता है कि हमें दिशा दिखाता है, भटके हुए लोगों को दिशा दिखाता है, इन द सेम वे ट्रू लव आल्सो गाइड्स अस, ट्रू लव आल्सो tells what is right, what is wrong, what is the proper direction of life. We come to know ultimately this is the characteristics of true love, यह true love का characteristics होता है। He also tells what, he also tells the difference between physical love and true love, yeah, that is spiritual love. He says that physical love, it's only for some days, for some time. With the passage of time, it will come to decay, it will decline. And physical love means the beauty of what, the beauty of body, but the beauty of body is only for short time, only for short days, rosy lips, and whatever the example he has given. He says that one day it will come and it will decline. But he gives value to what? He gives value to spiritual love and says spiritual love is forever, permanent, perpetual. It's an ever fixed mark. It does not yield. It does not change when the situation of yeah, when the situation or circumstances of changes come. It's forever. It will remain to till doomsday. एक उन्होंने बड़ी बात कही कि it will remain till doomsday. And whatever he said about true love in the couplet of the poem, he claims that ki, if this be error and upon me proved, I never read nor no man ever loved. So you will come to know ki it's a beautiful sonnet where there is what, where there is the concept of true love, where there is also the importance of role of time, time का भी है। और इसके अलावा उन्होंने ट्रू लव को, रोल ऑफ टाइम को लेकर के उन्होंने बात की है। और साथ ही साथ ये एक हाईली लिरिकल पोयम है, म्यूजिकल पोयम है, जिसमें मेटाफर है, सिमली है, एलिट्रेशन है, फिगुरेटिव लैंग्वेज है, पोएटिक लैंग्वेज है, सब्जेक्टिविटी है, दिस थिंग्स वी फाइंड। नाउ व्हेन यू गो विद दिस सॉनेट, तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आज आप दोबारा इस सॉनेट की ओरिजिनल लाइन जो आपके यहाँ पोयम में दी गई है उसको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे पूछा जाएगा कि आखिर एक कब आया, ये चीज पूछी जाएगी। ये लाइनें कहाँ से आई हुई है, तो उनकी ओरिजिनल चीजों को आप देख लीजिएगा, कुछ लाइनों को तो जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू कि इसके अलावा जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, जॉन डन के, सॉरी, शेक्सपियर पे अगर हम और बात करें कि शेक्सपियर हैज रिटन हाउ मेनी, शेक्सपियर ने कितना प्ले लिखा था? शेक्सपियर हैज रिटन हाउ मेनी प्लेस, शेक्सपियर ने कितना प्ले लिखा था? आवाज मेरी सबको जा रही है? या 37 प्ले लिखा था। जो 37 प्ले था शेक्सपियर का, वह कितने हिस्सों में बांटा जाता है? ट्रेजिडी, कॉमेडी, रोमन प्ले, और साथ ही साथ रोमांस या हिस्टोरिकल प्ले।
तो चार हिस्सों में बांटा जाता है। और ये जो उनके प्लेज हैं, उनके लिटरेरी करियर को डॉक्टर डाउटन ने बांटा हुआ था। डॉक्टर डाउटन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिक है, उन्होंने उसको बांटा। शेक्सपियर का जो प्ले आया है पब्लिश होकर के कब आता है? 1623 ईस्वी में पूरा कलेक्शन आता है, जिसको आप फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर कहते हैं। और इसको हेमिंग्वे और कॉन्डेल ने पब्लिश किया था, जिसमें एक प्ले को ओमिट कर दिया गया था, पेरिक्लिस को। 1632 ईस्वी में उनका जो है सारे प्लेज आते हैं, जिसमें इसको भी इंक्लूड किया गया था। शेक्सपियर से रिलेटेड और जो कहानी है कि वो यहाँ से बिलोंग करते हैं, अ, और इंग्लैंड में कैसे आए, ये मैं यहाँ पे आपके लिए जरूरी नहीं, लेकिन इतना जरूरी था। उनके चार ट्रेजेडीज का नाम हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो आपको ध्यान में रखना चाहिए। कुछ कॉमेडीज हैं, जैसे एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, मेजर फॉर मेजर, आल्स वेल दैट एंड्स वेल, ऑल दिस थिंग। रोमन प्ले में एंटोनी और क्लियोपेट्रा, रोमियो एंड जूलियट, कोरियोलेनस, और इसके अलावा ट्रेजी कॉमेडी द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ऑल दिस थिंग यू हैव टू गो। तो ये चीजें रही हैं। जहां तक बात है नेक्स्ट पोएट की, जिसका नाम था जो और भी रहा, हेमिंगवे एंड कॉन्डल। सोलह, हाँ इंपॉर्टेंट है। हेमिंगवे एंड कॉन्डल, CONDELL, कॉन्डल, 1623 ईस्वी, 1623। तो आज हमने क्लास में दो चीजों पे बात किया, शेक्सपियर को लेके बात किया और जॉन मिल्टन को लेके बात किया। कल आपको जो चीज कवर करना है, उसके लिए आपको मेटाफिजिकल पोइट्री बहुत अच्छे ढंग से कवर करके आइएगा। कल हम आपको लेक्चर कम देंगे, आपसे क्वेश्चन आंसर ज्यादा मैं करूंगा। टाइम को थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम जो मैं चेंज कर रहा हूँ वो आपका 10:45, 10:50 से, 10:50 से मैं टाइम आपका चेंज कर दे रहा हूँ। कितने बजे? 11:30? 11:30? नहीं, नॉट नॉट 11:30। आप लोगों को 10:50 पे तैयार होना है, क्योंकि 10:50 के बाद उसको क्लास लेने में थोड़ा सा हो। फर्स्ट म्यूट योर सेल्फ आयशा। मैंने कहा कि आफ्टर गिविंग योर आंसर यू हैव टू म्यूट योर सेल्फ, अदरवाइज माई साउंड इज इकोइंग। तो यू ऑल हैव टू प्रिपेयर एट 10:40, 10:50, नॉट 10:45। 10:50 पे आपको तैयार रहना है। अच्छा, और कोई ऑनलाइन क्लास शुरू हुई है? अच्छा, ओके ओके। वी विल मीट टुमारो 10:50 पे। कल आप लोग रेडी रहिएगा। नहीं, नहीं, 10:50 पे करेंगे, 10:50, 10 उसके पहले फर्स्ट। ला, ला।